The theme of the conference reflects Professor Swaminathan's lifelong mission to create a hunger-free, just and sustainable world. आज हमारे लिए अपार हर्ष, गर्व और सम्मान का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नव भारत के शिल्पकार, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, चेयरपर्सन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, to please present a paddy portrait to Honorable Prime Minister. The portrait has been created by Dr. Surabhi Verma from Jagdalpur, showcasing the beauty and diversity of rice, symbolizing the rich cultural heritage of Chhattisgarh. Thank you, madam. I now invite and request you to give the welcome address, please. Soumya ma'am, for the welcome address, please. Namaskar and good morning. It is with immense joy and deep gratitude that I welcome you all to this landmark occasion, the centenary of Professor MS Swaminathan. First, I would like to express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for gracing this occasion, because his presence here amongst us sends a very powerful message that science today is critical for India's development, all kinds of science, including agricultural research. When I first requested the Prime Minister earlier this year and informed him about my father's centenary, he readily agreed within minutes to participate and share his vision with us. And he also recalled his many fond interactions fondly with my father. मैं इस आयोजन के मुख्य संरक्षक के रूप में माननीय कृषि मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों सेक्रेटरी डेयर एंड DG ICMR डॉक्टर मंगीलाल जाट और कृषि सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी को उनके अमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। ICAR के वैज्ञानिकों, विशेषकर श्री डॉक्टर श्रीनिवास राव IARI के जो डायरेक्टर हैं और उनकी पूरी टीम, उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम आज नहीं हो सकता था। इस सम्मेलन में एक अन्य सहयोगी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, जिसकी स्थापना मेरे पिताजी ने 1990 में की थी और जिसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। वी आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर रमेश चांद as well as all the ministerial and senior dignitaries present here for their support, guidance and encouragement. It is especially meaningful that we are remembering my father on the very land, the very grounds where he worked and where he and his colleagues in the Pusa Institute ushered in an era of food self-sufficiency for our nation. Sir, today we have over 500 scientists from all over the world, more than 500 students, 300 farmers representing every corner of India, as well as many policy makers, UN agency heads, and our generous donors and partners. But there is one reason that you are all here. It's the same. It's the love, respect, and admiration for a man who gave selflessly, always put the country and its people first, and whose dream until his very last days was to eliminate hunger from this world. He used to say that every child should be born for happiness. इस सम्मेलन का विषय सतत हरित क्रांति, जैव सुख या जैव आनंद का मार्ग के दृष्टिकोण का साथ मेरे पिताजी का दृष्टिकोण का साथ प्रस्तुत करता है। उनका मानना था कि सच्ची प्रगति केवल उपज बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि लोगों और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भी ही निहित है। उन्होंने हमें हमेशा याद दिलाया कि विज्ञान को मानवता की सेवा करनी चाहिए, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों की, और ये भी कि भोजन, स्वास्थ्य और पर्यावरण का भविष्य
अविभाज्य है। Long before it became common discourse, he warned of the dangers of overuse of chemicals, unsustainable exploitation of groundwater, the climate crisis's impact on food production, and the loss of our traditional food crop varieties. He encouraged us to listen to and carry forward the indigenous and traditional knowledge which resides with our farmers and tribal families, especially women. As someone who has worked across health, science and development, I have seen how deeply interconnected these systems are. And as chairperson of the MS Swaminathan Research Foundation, I take pride that our foundation is a living laboratory of innovation, inclusion and impact, staying true to the spirit of our founder. This centenary is not only a time for remembrance, but it is a call to action, a call to build an evergreen revolution, Satat Harit Kranti, where no one goes hungry, where biodiversity flourishes, and where communities, especially women and youth, lead from the front lines of change. Thank you all very much for being part of this journey and welcome. Namaskar, Jai Hind. आपके स्वागत अभिभाषण हेतु बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार से, कि इस अवसर पर कृपया अपने बहुमूल्य एवं प्रेरणादायक विचार हम सभी के साथ साझा करें। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सौम्या जी, रमेश जी, उपस्थित मित्रों, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जीवन वास्तव में उसका होता है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है, दुनिया के लिए जीता है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे श्रद्धेय स्वामीनाथन जी। 1942-43 में बंगाल के अकाल के कारण जब लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, तब उनका हृदय व्यथित हो गया था और तब उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया खेती के लिए, किसानी के लिए और भूखमरी मिटाने के लिए। और उसके बाद जो हुआ, यहां बैठे सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1966 में मैक्सिको से 18,000 टन मैक्सिकन गेहूं आया था, जिसको मिश्रित करके पंजाब की किस्मों के साथ एक नई संकर किस्म गेहूं की विकसित की थी। और उसी किस्म के कारण एक साल में 5 मिलियन टन से बढ़ के 17 बिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो गया था। भारत क्रांति के जनक थे। और उसके बाद उन्होंने जो कृषि विज्ञान के लिए सिस्टम खड़ा किया, वो आज तक सही दिशा में काम कर रहा है। मित्रों, हमारे बीच प्रधानमंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी का हर शब्द हमारे लिए मंत्र जैसा होता है। पिछले दिनों, एक साल पहले, जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूसा कॉम्प्लेक्स में पधारे थे, तब उन्होंने हमें कहा था, लैब टू लैंड जोड़ो। विज्ञान और किसान जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक खेती सही दिशा में चलेगी नहीं। और उन्हीं की प्रेरणा से एक नहीं, अनेकों अभियान चल रहे हैं आज भी। उसमें एक आधुनिक कृषि चौपाल और दूसरा विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, जिसमें 2170 टीमें वैज्ञानिकों की 64,000 से ज्यादा गांव गई और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद किया। मैं आज केवल अंत में इतना कहना चाहता हूं, हम प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे
कि जहां तक भारत का सवाल है, आज हम राइस के मामले में सरप्लस है, रखने की जगह नहीं है। गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम हो रहा है। अब देश में कोई भूखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां जो वैज्ञानिक बैठे हैं, विशेषकर विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी जो बात उभर कर सामने आई, दलहन और तिलहन में अभी पर हेक्टर प्रोडक्शन में हम पीछे हैं। तो हमारे सोच की दिशा ये हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों हो, तिल हो या चना, मसूर, उड़द, अरहर हो, उसमें उत्पादन कैसे बढ़े। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम हम उठा रहे हैं, लेकिन जो दिशा स्वामीनाथन जी ने दिखाई, उसके कारण न केवल भारत बल्कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अंगीकार करके दुनिया की सेवा की। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल के हम देश और दुनिया को भी, क्योंकि भारत केवल भारत नहीं है, विश्व बंधु भी है, दुनिया के लिए भी काम करता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो दुनिया में भूख और अभाव नहीं रहने देंगे। लेकिन एक बात जो हरित क्रांति की कही, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी ध्यान में रखना है मित्रों। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्राकृतिक कृषि मिशन लॉन्च हुआ है और उस पर हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न, फल और सब्जी उपजाती रहे। उस दिशा में भी हम लोग गंभीरता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ काम करेंगे। एक बार फिर स्वामीनाथन जी के चरणों में प्रणाम है। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। उन्होंने एक नया इतिहास दुनिया से भुखमरी मिटाने के लिए बनाने का जो काम किया है, उसके लिए सत सत नमन, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति एवं सुविचारों ने इस सम्मेलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके प्रति गहन आभार। Let us all now watch a short video presentation that captures the highlights of Professor Swaminathan's life. The video may kindly be played. In 1925, in the small temple town of Kumbakonam in Tamil Nadu, a boy was born into a doctor family. Mankombu Sambasivan Swaminathan, or MSS as he would come to be fondly known, was destined to change the future of India. Even as an adolescent, he was impacted by India's famine during World War II. So he made a bold choice to fight hunger. After his degree in agriculture, MSS cleared the Indian Police Services exam, but instead chose a career in genetics. From there, he went to Cambridge, where he worked under the legendary geneticist Sir F.G. Hopkins. MSS went on to partner with Nobel laureate Dr. Norman Borlaug to bring high-yielding wheat and rice varieties to India's struggling fields. He worked shoulder to shoulder with small farmers and later with coastal fishers, listening, learning and building their trust. 1960s India was a time of severe famine marked by mass starvation. Food aid from the West were our lifeline. MSS's vision and tireless work eventually led India to the Green Revolution, a science-led movement that turned India from a food beggar to a food basket in just over a decade. By the 1980s, Professor Swaminathan became a household name. He chaired global commissions, shaped biodiversity policies, and earned over 80 honorary doctorates in his lifetime. He received several honors from the World Food Prize, the Magsaysay Award, and the Padma Vibhushan. No matter how high the accolade, he remained till the end an empathetic and humble teacher, mentor, colleague, friend, and public servant. MSS also advocated for a holistic approach to agriculture, emphasizing sustainability, gender equity, and conservation. This was the genesis of his idea of the Evergreen Revolution. In 1988, he founded the MS Swaminathan Research Foundation, an organization that has grown to be a powerful bridge between science and society, working on a range of issues like biodiversity conservation, regenerative agriculture, climate resilience, and more.
His wife and noted social activist, the late Meena Swaminathan, played a key role in infusing a strong gender lens to the work of the foundation. This pro-poor, pro-nature and pro-woman approach continues to be the North Star of the foundation. In his later years, he coined a term and an ideal that can well define our collective future that is currently grappling with the polycrises of climate change, biodiversity loss, and growing inequity, biohappiness. The joy that comes from living in harmony with nature and from ensuring the equitable use of our biological or natural resources. Our major aim is to integrate the principles of environmental sustainability and social equity into all aspects of technology development and dissemination. Thank you, ladies and gentlemen, for the applause and attention. So moving ahead, we are extremely honored to announce the official release of a commemorative coin and a centenary memorial stamp dedicated to Professor M.S. Swaminathan, a generous token of commemoration by the Government of India. First, we release the special 100 rupee coin minted generously by the Government of India to honor Professor Swaminathan's 100th birth anniversary today. With the utmost respect, I request Honorable Prime Minister and the dignitaries to kindly do the honors of releasing the coin, please. I invite Dr. N. Parasuraman, Principal Scientist, MSSRF, to please come on the stage to present the coin to Honorable Prime Minister. Next, we are honored to release the centenary commemorative stamp issued by the Postal Department to mark Professor Swaminathan's achievement. I request Colonel Akhilesh Kumar Pandey, Chief Postmaster General, Delhi Post Circle, Ministry of Communications, to kindly come upon the stage and hand over the first album of the commemorative stamp to Honorable Prime Minister for the release. Other dignitaries are also requested to join us on the stage. Thank you all. Up next, I have the wonderful honor to announce the much-awaited winner of the first ever TWAS, the World Academy of Science M.S. Swaminathan Award for Food and Peace. I invite Dr. Quraisha Abdul Karim, the President of the World Academy of Sciences TWAS, to please join us on the stage and to share the moment, please. And I proudly announce the first ever recipient of the M.S. Swaminathan Award for Food and Peace, Professor Ademola A. Adanle from Nigeria, for his pioneering research and policy leadership in sustainable agriculture and innovations, which have strengthened food security, reduced poverty and fostered peace across Africa. I proudly invite Dr. Adanle on the stage, please. He currently serves as the Senior Special Advisor to the Federal Ministry of Agriculture and Food Security, Nigeria. The award consists of a cash prize of $25,000 and a certificate. I very humbly request Honorable Prime Minister to kindly present this prestigious award to Dr. Adanle, and hearty congratulations to Dr. Adanle. बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर प्रार्थना करती हूँ परम श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि अपने बहुमूल्य संदेश से हम सबको अनुग्रहित करें। आपके विचारों को सुनना हम सभी के लिए गौरव का विषय है। सभी से अनुरोध, उमंगपूर्ण तालियों के साथ प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन
डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद जी, मैं देख रहा हूं स्वामीनाथन जी के परिवार के भी सभी जन यहां मौजूद है, तो उनको भी प्रणाम करता हूं। सभी साइंटिस्ट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका योगदान किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता, किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं रहता। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया, देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियां और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। मैं आप सभी को स्वामीनाथन जन्म शताब्दी समारोह की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे भी है। पिछले 10 सालों में हैंडलूम सेक्टर को देश भर में नई पहचान और ताकत मिली है। मैं आप सभी को हैंडलूम सेक्टर से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ मेरा जुड़ाव कई वर्षों पुराना था। गुजरात की पहले की स्थितियां बहुत लोगों को पता है। पहले वहां सूखे और चक्रवात की वजह से कृषि पर काफी संकट रहता था। कच्छ का रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उसी दौरान हमने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर काम शुरू किया। मुझे याद है प्रोफेसर स्वामीनाथन ने उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने खुले दिल से हमें सुझाव दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। उनके योगदान से इस पहल को जबरदस्त सफलता भी मिली। करीब 20 साल हुए जब मैं तमिलनाडु में उनके रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर पर गया था। साल 2017 में मुझे उनकी लिखी किताब द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर उसको रिलीज करने का मौका मिला था। साल 2018 में जब वाराणसी में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रीजनल सेंटर का उद्घाटन हुआ तो भी उनका मार्गदर्शन हमें मिला। उनसे हुई हर मुलाकात मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती थी। उन्होंने एक बार कहा था, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी बट डिलीवरी। और उन्होंने इसे अपने कार्यों से सिद्ध किया। वो केवल रिसर्च नहीं करते थे बल्कि खेती के तौर तरीके बदलने के लिए किसानों को प्रेरित भी करते थे। आज भी भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी अप्रोच, उनके विचार हर तरफ नजर आते हैं। वो सही मायने में मां भारती के रत्न थे। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं
कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरमेंट की, धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक और अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स जैसे आइडियाज को बढ़ावा दिया। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन मानते थे कि क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन की चुनौती का हल उन्हीं फसलों में छुपा है जिन्हें हमने भुला दिया है। ड्राउट टॉलरेंस और सॉल्ट टॉलरेंस पर उनका फोकस था। उन्होंने मिलेट्स, श्री अन्न पर उस समय काम किया जब मिलेट्स को कोई पूछता नहीं था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले ये सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बनेगी। आज जब हम क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। साथियों, आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन कहते थे कि बायोडायवर्सिटी की ताकत से हम स्थानीय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोकल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से लोगों के लिए आजीविका के नए साधन बना सकते हैं। और जैसा उनका व्यक्तित्व था, अपने आइडियाज को वो जमीन पर उतारने में माहिर थे। अपने रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने नई खोजों का लाभ किसानों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया। हमारे छोटे किसान, हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी, इन सबको उनके प्रयासों से बहुत लाभ हुआ है। साथियों, आज मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि प्रोफेसर स्वामीनाथन की विरासत को सम्मान देने के लिए एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस शुरू हुआ है। ये इंटरनेशनल अवार्ड विकासशील देशों के उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने फूड सिक्योरिटी की दिशा में बड़ा काम किया है। फूड एंड पीस, भोजन और शांति का रिश्ता जितना दार्शनिक है उतना ही प्रैक्टिकल भी है। हमारे यहां
उपनिषदों में कहा गया है, अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम, प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। अर्थात हमें अन्न की, अनाज की अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्राण अर्थात जीवन अन्न ही है। इसलिए साथियों, अगर अन्न का संकट पैदा होता है तो जीवन का संकट पैदा होता है, और जब हजारों लाखों लोग के जीवन का संकट बढ़ता है तो वैश्विक अशांति भी स्वाभाविक है। इसलिए एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस बहुत ही अहम है। मैं यह पहला अवार्ड पाने वाले नाइजीरिया के टैलेंटेड साइंटिस्ट प्रोफेसर आडेनले, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय कृषि जिस ऊंचाई पर है वो देखकर डॉक्टर स्वामीनाथन जहां भी होंगे उन्हें गर्व होता होगा। आज भारत दूध, दाल और जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। आज भारत चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओस के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई है। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भंडारण के अभियान को भी गति दी है। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर, किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, केमिकल का उपयोग कम हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी। साथियों, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज को विकसित करना होगा। ड्राउट टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना होगा। फसल चक्र कैसे बदला जाए, किस मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त है, उस पर अधिक रिसर्च होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सस्ते सॉइल टेस्टिंग टूल्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके से उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन की दिशा में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ड्रिप सिस्टम और प्रिसिशन इरिगेशन को हमें ज्यादा व्यापक और असरदार बनाना होगा। क्या हम सैटेलाइट डेटा, एआई और मशीन लर्निंग को जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो उपज का पूर्वानुमान दे सके, कीटों की निगरानी कर सके और बुआई के लिए गाइड कर सके? क्या हर जिले में ऐसा रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पहुंचाया जा सकता है? आप सभी एग्रीटेक स्टार्टअप्स को भी निरंतर गाइड करते रहिए। आज बड़ी संख्या में इनोवेटिव युवा खेती की समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। अगर आप जो अनुभवी लोग हैं, आप अगर लोग उन्हें गाइड करेंगे तो उनके बनाए प्रोडक्ट ज्यादा प्रभावशाली होंगे और यूजर फ्रेंडली होंगे। साथियों, हमारे किसान और हमारे किसान समुदायों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न साइंस को जोड़कर एक होलिस्टिक नॉलेज बेस तैयार किया जा सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आज एक नेशनल प्रायोरिटी है। हमें अपने किसानों को बताना होगा कि इसका क्या महत्व है। हमें समझाना होगा कि इससे क्या फायदे होंगे। साथ ही ये भी बताना होगा कि ऐसा न करने पर क्या नुकसान होंगे। और इसके लिए
आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। साथियों, पिछले साल जब मैं 11 अगस्त को यहां पूसा कैंपस में आया था तो कहा था कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लैब से लैंड तक पहुंचाने के लिए प्रयास बढ़ाएं। मुझे खुशी है कि मई जून के महीने में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। पहली बार देश के 700 से ज्यादा जिलों में वैज्ञानिकों की करीब 2200 टीमों ने भाग लिया। 60,000 से ज्यादा कार्यक्रम किए। इतना ही नहीं, करीब करीब 1.25 करोड़ जागृत किसानों के साथ सीधा संवाद किया। हमारे वैज्ञानिकों का ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचने का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। साथियों, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने हमें सिखाया था कि खेती सिर्फ फसल की नहीं होती, खेती लोगों की जिंदगी होती है। खेत से जुड़े हर इंसान की गरिमा, हर समुदाय की खुशहाली और प्रकृति की सुरक्षा, यही हमारी सरकार की कृषि नीति की ताकत है। हमें विज्ञान और समाज को एक धागे में जोड़ना है। छोटे किसान के हितों को सर्वोपरि रखना है और खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सशक्त करना है, एम्पावर करना है। हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर स्वामीनाथन की प्रेरणा हम सभी के साथ है। मैं एक बार फिर आप सभी को इस समारोह की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदर, आभार, अनुग्रह। प्रोफेसर स्वामीनाथन के साथ अपने व्यक्तिगत प्रसंगों को साझा कर आपने हम सब के लिए इस कॉन्फ्रेंस को और